پاناما کیس میں روز بروز بدلتی صورتحال، اصل سوال 12 ملین درہم کا ہے۔ قرض کا بڑا حصہ کن نامعلوم ذرائع سے لیا گیا؟ التوفیق کیس میں 34 ملین کا قرض کیسے ادا ہوا؟ کاغذات نامکمل ہونے پر شریف خاندان کو حساب دینا ہوگا، سپریم کورٹ میں جج کے ریمارکس۔ قطر والوں نے رقم لندن منتقل کی تو شریف خاندان کیسے اس کا حساب دے سکتا؟ کاروبار دادا کا تھا تو پوتے کیسے رقم کے ذمہ دار ہوئے؟ اسحاق ڈار کے منی لانڈرنگ میں اعترافی بیان کے خلاف نیب نے اپیل کیوں نہیں کی؟ ججز کا سوال۔ عدالت نے 16 سوالات کیے، جواب ایک کا بھی نہیں دیا۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری کو ججز نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ آپ پانی میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یا کچھ اور؟ عدالت کا مکالمہ۔ عدالت کے باہر فریقین کی آج پھر مورچہ بندی۔ 12 ملین درہم کا کوئی منی ٹریل نہیں، 81 کروڑ ہنڈی کے ذریعے باہر گئے۔ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے التوفیق کی سیٹلمنٹ ہوئی، تحریک انصاف کے رہنماؤں کا دعویٰ۔ نون لیگ کے مورچوں سے بھی تحریک انصاف پر جوابی شیلنگ۔ ٹرسٹ ڈیڈ کو تحریک انصاف نے مان لیا، پی ٹی آئی کا کام صرف الزام لگانا ہے۔ عمران چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ناکام ہوں گے، لیگی رہنماؤں کی تنقید۔ کرپٹ لوگ سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ عدالت کے سامنے پاناما معاملے پر بہت سے ثبوت موجود ہیں، چاہتے ہیں حقیقی احتساب اور انصاف کا بول بالا ہو۔ سراج الحق اور شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ الزام تراشی اور جھوٹ کی سیاست کرنے والوں کو عوام یکسر مسترد کر چکے۔ تبدیلی صرف نعروں اور تقریروں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے آتی ہے۔ وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف بھی مخالفین پر برس پڑے۔ فوجی عدالتوں کا چیپٹر ابھی بند نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں توسیع کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ آئینی ترمیم پر تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ سابق آرمی چیف مسلم اتحادی فوج کے سربراہ کیسے بنے؟ راحیل شریف نے حکومت یا ادارے سے اجازت لی؟ کیا این او سی جاری کیا گیا؟ چیئرمین سینٹ نے حکومت سے جواب مانگ لیا۔ جنرل راحیل کے کسی عہدہ سنبھالنے کا علم نہیں۔ سابق آرمی چیف نے سعودیہ میں کوئی بات کی تو حکومت کی اجازت سے کی ہوگی۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس مصدق ملک کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ میں تو شروع دن سے ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے، اور جو ملٹری کورٹس 2 سال رہی ہیں ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی۔ وزیر قانون پنجاب نے پہلے ملٹری کورٹس پر تنقید کر ڈالی۔ قیادت کے نوٹس لینے پر رانا ثناء اللہ کا یو ٹرن۔ فوجی عدالتوں کی کارکردگی بھی نظر آ گئی۔ ملٹری کورٹس کا قیام جو ہے اس سے اس کو ریلیف ملا، لیکن ہنگامی حالات میں یہ ایک ہنگامی اقدام تھا، اس اقدام کا بالکل فائدہ ہوا۔ طیبہ کے بازو، ٹانگوں، کمر اور آنکھوں کے گرد نشانات۔ میڈیکل رپورٹ میں زخموں کی تصدیق ہو گئی، کچھ زخم تازہ ہیں۔ بچی ڈری ہوئی ہے تاہم حالت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ گرنے سے اس طرح کی انجریز نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی تشدد کی علامت ہے۔ تشدد کس نے کیا، کیوں کیا، ڈیفینیٹلی یہ پولیس کا کام ہے۔ طیبہ کے دعوے دار والدین کی شناخت کے لیے خون کے نمونے لیے گئے۔ کسی کے لیے ثنا، کسی کے لیے نادیہ۔ طیبہ کا اصل نام کیا ہے؟ اصل والدین کون ہیں؟ دعوے دار والدین کی تعداد میں ایک اور اضافہ۔ لیا کا رہائشی جوڑا بھی سامنے آ گیا۔ چل رہی ہے بچی گم ہے، پھر اسلام آباد میں دکھا رہے ہیں۔ تسی اتر جاؤ، پہنچ جاؤ، تو بچی مل جاتی، تھوڑی ہوئی تھوڑی سامنے آ جاتی۔ بچی آپ کی کب گمی؟ 1.5 سال ہو۔ 26 سے زائد ہلاکتوں کے باوجود بلوچستان حکومت غفلت سے نہیں جاگی۔
गडानी में आग ने आज फिर बहरी जहाज को लपेट में ले लिया। भड़कते शोले 5 मजदूरों की जिंदगियां निगल गए। 5 लापता, 70 को बहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस ने जहाज के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक और संगमील, पाक बहरिया का बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। वजीर आजम की मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के प्रोफेसर सलमान हैदर का कोई सुराग न मिल सका। वजीर दाखिला की हिदायत पर पुलिस अफसरान की सलमान हैदर के घर आमद। कहा इंटेलिजेंस इदारों से मदद ली जा रही है, जल्द पता लगा लेंगे। बलूचिस्तान में कलअदम तंजीम के कमांडर बलख शेर बादिनी ने हथियार डाल दिए। कम उम्री और ला इल्मी की वजह से बहकावे में आया। आज से पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा, बलख शेर बादिनी। वज़ीर आला सिंध को तमाम अजला की तजावीज भेज दी। जल्द स्कीमों की मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म कराची पर रहम और शहर के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें, मेयर वसीम अख्तर की अपील। मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं कि पानामा का फैसला 50-50 और बिलावल भुट्टो की शादी 2018 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद होगी। When the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. अमरीकी लेजेंडरी अदाकारा मेरिल स्ट्रिप की माजूर रिपोर्टर का मजाक उड़ाने पर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा जब साहिब इख्तिदार इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है तो फिर सब हार जाते हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मरी और गिलियात में आवाम का रश। बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मोहम्मद इरफान की जगह फास्ट बॉलर जुनैद खान स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद इरफान वालिदा के इंतकाल के बाइस ऑस्ट्रेलिया से वतन रवाना। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयन चैपल की हर्जा सराई। कहते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में पाकिस्तानी फिल्मों की शान, पंजाबी फिल्मों के सुल्तान सुल्तान राही की आज बरसी है। उनके मद्दा उन्हें आज भी नहीं भूले। Cameras up and lights are bright. Rigs are on inspection. Just hacked your hard drive. और हॉलीवुड म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म लाला लैंड ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड का मेला लूट लिया। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार और बेहतरीन अदाकारा समेत 7 अवार्ड जीत लिए। My own club. बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म का अवार्ड फ्रांसीसी फिल्म एलए के नाम। सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस में तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी को फिर आड़े हाथों ले लिया। अदालत ने सवाल उठाया कि अगर कतर वालों ने रकम लंदन भेजी है तो शरीफ खानदान इसका हिसाब कैसे दे सकता है। जजेस ने शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम में नैब की तहकीकाती सलाहियत को भी तनकीद का निशाना बनाया और वाज़ेह किया कि इल्जाम की दोबारा तहकीकात कराई जा सकती है। देखते हैं फैसल रजा की रिपोर्ट। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पानामा मुकदमे की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने दलाइल में ऑफशोर कंपनियों, वजीर आजम के खिताब और कतरी खत पर हवाले दिए। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि असल सवाल 12 मिलियन दिरहम का है। लंदन की जायदाद कतर वालों की थी तो रिकॉर्ड शरीफ खानदान कैसे दे सकता है। जस्टिस एजाज ने कहा कि कारोबार दादा का था तो पोते कैसे जिम्मेदार हुए। नईम बुखारी ने कहा कि मरियम और हुसैन नवाज हुदैबिया मिल्स के डायरेक्टर रहे। अदालत ने कहा कि हुदैबिया मिल्स के अल-तौफीक केस में मरियम और हुसैन फरीक नहीं थे, लेकिन 34 मिलियन का कर्ज कैसे अदा हुआ ये शरीफ खानदान को बताना होगा। नईम बुखारी ने मरियम नवाज की जायदाद का हवाला दिया तो जस्टिस अजमत ने कहा कि कर्ज का बड़ा हिस्सा नामालूम जराए से आया। शरीफ खानदान को ये जरिया भी बताना होगा।
नईम बुखारी ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक इसहाक डार के बयान हल्फी का मामला उठाया और कहा कि अल-तौफीक केस में हुदैबिया मामले में शरीफ खानदान से रियायत बरती गई। अदालत ने कहा कि लगता है इल्जामात में नहीं तहकीकात में झोल था। चेयरमैन नैब को अपील दायर न करने की वजाहत देना होगी। अदालत दोबारा तहकीकात का हुक्म भी दे सकती है। जस्टिस अजमत ने नईम बुखारी से कहा कि अदालत ने 16 सवालात किए, जवाब एक का भी नहीं दिया गया। नईम बुखारी के दलाइल जारी थे कि मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। फैसल रजा खान, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस की समाअत के बाद फरीकैन ने बाहर आकर एक दूसरे पर सियासी रताड़ की भरपूर कोशिशें की। हुकूमत ने मुखालफीन को बेअबमाही करार देकर उनके दलाइल को गपशप कहा तो अपोजिशन का कहना था कि बात सिर्फ दलाइल तक महदूद नहीं, सियासत भी होगी और अवामी एहतसाब भी होगा। किसने क्या कहा आपको दिखाते हैं। आज पानी च मधानी फेरी जा रही थी, जैसे मछली जब पानी के बाहर आ जाए तो कभी वो एक तरफ फटकती है, कभी दूसरी तरफ फटकती है। आज उस ट्रस्ट डीड को भी पीटीआई ने मान लिया, तो बाकी तो रह गई इस केस में गपशप। आप बताएं कौन सी टेक्निकल ग्राउंड थी, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि मेरे कान में किसी ने फूंक मारी है। जो बार बार वो कोशिश करते हैं चोर दरवाजे से इक्तदार में आने की, ये उनकी आखिरी कोशिश साबित होगी और इंशाल्लाह इस अदालत से हम सुरखरू होंगे। जो अल-तौफीक बैंक का $34 मिलियन था, वो बुनियादी तौर के ऊपर एक फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के जरिए अरेंज किया गया, जिसके पैसे भी पाकिस्तान से भेजे गए। 2011 में ये रेफरेंस क्वैश किया। जस्टिस फर्रुख आफ्ताब साहब हैं, उनका अपना नाम भी वैसे पनामा पेपर्स में है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने ये केस जो है रेफरी जज के तौर के ऊपर क्वैश किया। एक इतने पावरफुल फैमिली को कमरे अदालत में ले आए हैं और अब ये अवाम उनसे पूछेंगी, इसका हिसाब लेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम केस है, लेकिन ये एक सियासी केस है। दलाइल सारे मौजूद हैं, अब फैसला आना बाकी है, या सड़कों पे होगा या अदालत से आ जाएगा। पनामा केस में अदालत के बाहर की अदालत भी आपने देखी और सुनी। अब बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, जिन्हें बहाल करने के लिए मशावरत जारी है। हुकूमत ने गैर फाल होने वाली फौजी अदालतों की बहाली के लिए पार्लिमानी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत ने इत्तेफाक किया है कि कौमी अहदाफ के हुसूल के लिए दाखिली और खारजी महाज पर तमाम अहदाफ हासिल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी 2 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल करके खत्म हो जाने वाली फौजी अदालतों की बहाली और उन्हें तौसी देने के लिए सियासी मुशावरत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसरारी दहशतगर्दी ऑपरेशन समेत फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया गया। इजलास में इंसरारी दहशतगर्दी के इक़दामात से हासिल नताइज को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी गौर हुआ। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुकम्मल अदम बर्दाश्त की वाज़ेह पॉलिसी पर कारबंद रहा जाएगा, ताकि दाखिली सलामती के अहदाफ हासिल हो सकें और सिफारती सतह पर कोशिशें भी मज़ीद मौसर और कामयाब बनाई जा सकें। BBC के मुताबिक इजलास को बताया गया कि फौजी अदालतों को ये तौसी एक महदूद मुद्दत के लिए दी जाएगी, जिसका तयन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। शुरका का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में अहदाफ के हुसूल में फौजी अदालतों ने अहम किरदार अदा किया है। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि पायदार दाखिली अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और DG ISI और मुशीरों समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। फौजी अदालतों की कारकर्दगी के मामले पर नून लीग के वज़रा के अपने ही दरमियान बयानबाजी हो गई। राना सनाउल्लाह ने पहले फौजी अदालतों पर तनकीद की, फिर मरियम औरंगजेब के रद्दअमल के बाद अपने बयान से ताइब हो गए। राना सनाउल्लाह का पुराना और नया बयान देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने पहले मिलिट्री कोर्ट्स पर भरपूर तनकीद की और उनकी कारकर्दगी को सिफर करार दिया। मैं तो शुरू दिन से मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो कोई हल नहीं है, और जो मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल रही हैं उनकी कारकर्दगी भी जो है वो कोई इतनी ज्यादा बेहतर नहीं रही। उन्होंने ये भी कह दिया कि फौजी अदालतों ने सिर्फ क्लियर केसेस का ट्रायल किया।
बिल्कुल वो केस जो बिल्कुल क्लियर थे, जिनके तमाम मुल्जमान गिरफ्तार थे, जिनमें एविडेंस सारी मौजूद थी, उन केसेस को जो है वो ट्रायल किया गया और बाकी केसेस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर यूं हुआ कि मरकजी क़यादत ने नोटिस ले लिया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तो उनके बयान से ही लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा कि फौजी अदालतों ने बाखूबी काम किया। राना सनाउल्लाह का बयान लाइल्मी की बुनियाद पर है। इसका असर ये हुआ कि इमरान खान को यू टर्न का बादशाह करार देने वाले राना सनाउल्लाह ने खुद यू टर्न ले लिया। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो अंडर स्ट्रेस था, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है उससे उसको रिलीफ मिला, लेकिन हंगामी हालात में ये एक हंगामी इकदाम था। उस इकदाम का बिल्कुल फ़ायदा हुआ। राना सनाउल्लाह के बदले हुए बयान से ये कहावत तो कम से कम ठीक साबित हो गई, पहले तोला जाए फिर बोला जाए। और अब बात करते हैं तैयबा तशद्दुद केस की। इस्लामाबाद में सेशन जज के घर में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन मुलाजमत तैयबा का तिब्बी मुआयना कर लिया गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद और जलने के निशानात हैं। कुछ जख्म अभी ताज़ा हैं। तैयबा भी सहमी हुई है, जबकि आज न्यूज़ के पास भी तैयबा की ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सेशन जज की रिहाइश गाह पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली तैयबा को पिम्स लाया गया। डॉक्टर तारिक इकबाल की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तैयबा का तिब्बी मुआयना किया। बोर्ड ने तैयबा के खून के नमूने भी हासिल किए और ज़हनी कैफियत को जांचने के लिए सवालात भी किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वीसी पिम जावेद इकराम ने कहा कि जनरल सर्जन और माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल बोर्ड ने 1 घंटे तक बच्ची का चेकअप किया। बोर्ड के सरबराह डॉक्टर तारिक इकबाल ने कहा कि मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया है। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद और जलने के निशानात हैं। कुछ जख्म ताज़ा हैं और कुछ बढ़ चुके हैं। यूजुअली ये गिरने से इस तरह की इंजरीज नहीं होती। डेफिनेटली तशद्दुद की अलामत है। तशद्दुद किसने किया, क्यों किया, डेफिनेटली ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है कि वो ढूंढे। डॉक्टर तारिक इकबाल ने कहा कि नक्शा मजरूबी से हटकर मुआयना भी किया गया है। बच्ची की हालत नॉर्मल हो रही है, ताहम अब भी सहमी हुई है और बयान भी बदल रही है। उसकी बैक पे भी है, उसकी टांगों पे भी है, बाजू पे भी है, तो उसमें स्ट्रेस में जरूर थी, बट शी इज नॉर्मल। डॉक्टर जावेद इकराम का कहना था कि तैयबा के वालिदैन के खून के नमूने भी लिए गए हैं। कुछ रोज में फैमिली ट्री बना लेंगे, जिससे वालिदैन की शनाख्त भी हो जाएगी। तैयबा का डीएनए नहीं लिया गया था पहली रिपोर्ट में, आज उसका भी डीएनए लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 से 5 दिन में ये पूरी इसकी ट्री इंशाल्लाह हम बना लेंगे कि उसके हकीकी पेरेंट्स कौन है, उसकी हकीकी दादी कौन है। और डॉक्टर जावेद इकराम ने यकीन दिलाया कि तैयबा केस में न किसी किस्म का दबाव है और न ही दबाव बर्दाश्त किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाई जाएगी। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। उधर गिरडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में लंगर अंदाज जहाज में कटाई के दौरान आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 5 मजदूर जाँ बहक हो गए, जबकि 5 ताहाल लापता हैं। पुलिस ने जहाज के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। गडानी में पहले हादसे की गर्त अभी जमी न थी कि शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक और सानिया रोनुमा हो गया। प्लांट नंबर 7 पर लंगर अंदाज होने वाले नाकारा जहाज में कटाई के दौरान आग भड़क उठी। आतिशज़दगी की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और 70 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक एलपीजी बरदार जहाज में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 80 से जायद थी। लापता मजदूरों की तलाश जारी है। शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन के साबिक सदर और शिप ब्रेकिंग प्लांट के मालिक दीवान मोहम्मद रिजवान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 माह कबल भी इसी यार्ड में एक नाकारा ऑयल टैंकर में आग लगने से 27 मजदूर जाँ बहक हो गए थे। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने साबिक आर्मी चीफ की मुस्लिम इत्तेहादी फौज का कमांडर चीफ बनने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जवाब 3 नुकात पर देने की हिदायत की गई है। चेयरमैन रजा रब्बानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन सेनेट ने साबिक आर्मी चीफ की मुस्लिम इत्तेहादी फौज का कमांडर चीफ बनाने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। रजा रब्बानी ने कहा कि वज़ीर दिफा ऐवान का जवाब देते वक्त 3 बातों को सामने रखें। रिटायर्ड फौजी अफसरान के रिटायरमेंट के बाद के कायदे व ज़वाबित क्या है? क्या ये कायदे ज़वाबित इस तकर्री की इजाजत देते हैं? क्या इसके लिए एनओसी लिया गया है? उन्होंने मुशीर खारजा से भी वजाहत मांगते हुए कहा कि बताया जाए
کہ یہ تقرری اس معاملے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی قرارداد سے متصادم نہیں۔ اجلاس میں سینیٹر بابر ایوان نے مخنث افراد کے حقوق سے متعلق بل پیش کیا، جسے متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ نیکٹا ایکٹ 2013 میں ترمیم، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 میں مزید ترمیم اور عوامی نمائندگی ایکٹ بل 1996 کے ترمیمی بلز منظور کر لیے گئے۔ اور ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیں، وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو جنرل راحیل کے کسی عہدہ سنبھالنے کی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل راحیل نے سعودی حکومت سے کوئی بات کی ہے تو حکومت کی اجازت سے ہی کی ہوگی۔ جنرل راحیل پاکستان آ کر حکومت کی اجازت اور GHQ کی NOC سے ہی کوئی عہدہ سنبھال سکتے تھے۔ وہ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں میزبان آسمہ شرازی سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس کی تصدیق نہیں کی تو کسی بھی کونے سے کسی حوالے سے یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی گفتگو نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں، تردید بھی نہیں آئی نا۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ابھی تک آفیشیلی مجھے کوئی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی جو میں آ کے عوام کے سامنے رکھ سکوں۔ پرسنل کیپیسٹی میں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے تمام TORs جو بھی ہیں ان کی بات چیت چلی ہے۔ اب وہ آ کے حکومت سے بات کریں گے، باقاعدہ حکومت سے اجازت لیں گے، باقاعدہ جو ہے وہ اپنے GHQ میں بھی جائیں گے، حکومت کے پاس بھی آئیں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت کی خارجہ پالیسی پہ اثر پڑے۔ اور اب موسم کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ نتھیا گلی میں بارش اور برف باری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ دیر بالا میں بھی شدید برف باری ہوئی۔ خیبر سے کراچی اور گلگت سے گوادر تک ملک بھر میں سردی برقرار ہے۔ کئی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے ہے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی علاقے نتھیا گلی میں بارش اور برف باری کے بعد موسم خوشگوار ہے۔ ملک بھر سے سیاحوں کی کثیر تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے نتھیا گلی پہنچ گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں شدید سردی کے باعث نظام زندگی متاثر ہے۔ شدید سردی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دیر بالا میں شدید برف باری ہوئی جو اب رک چکی ہے، تاہم سردی کی شدت برقرار ہے۔ بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند ہونے کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بریک کے بعد آگے دیکھیے، سلمان حیدر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اور فراری کمانڈر کی قومی دھاری میں واپسی۔ ویلکم بیک۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سماجی کارکن پروفیسر سلمان حیدر کی بازیابی کے لیے وفاقی حکومت کی ہدایات پر کوششیں جاری ہیں۔ اس پراسرار گمشدگی کے معاملے پر سینٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے۔ معروف سماجی کارکن پروفیسر سلمان حیدر اسلام آباد سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ اس واقعے کی گونج آج سینٹ میں بھی سنائی دی۔ سینٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر نے تحریک التوا پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کو بتایا جائے کہ انسانی حقوق کے لیے سرگرم سلمان حیدر سمیت 4 افراد کو کس نے اٹھایا۔ ان افراد کی بازیابی کے لیے حکومت اور پارلیمنٹیرینز پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سینیٹر الیاس بلوڑ نے کہا کہ 4 افراد اغوا ہو گئے، بتایا جائے کہ اس پر وزارت داخلہ اور حکومت کیا کر رہی ہے۔ ادھر ترجمان وزارت داخلہ کے سینئر پولیس افسران نے سلمان حیدر کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ خفیہ اداروں کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے پروفیسر سلمان کی گمشدگی کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ کو طلب کر لیا۔ پاک بحریہ نے اسٹریٹجک دفاع کے لیے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ آبدوز سے کروز میزائل کا پہلی بار تجربہ کیا گیا۔ 450 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل نے اپنے ہدف کو 100% ٹھیک نشانہ بنایا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
वतन अजीज के स्ट्रेटेजिक दिफा में मुसल्लह अफवाज की एक और बड़ी पेशरफ्त। दुनिया पर ज़ेर आब मुतहर्रिक लॉन्चिंग पैड से सतह जमीन पर मौजूद हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर दिफाई सलाहियत वाज़े कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाक बहरिया ने समंदर में जदीद तरीन क्रूज मिसाइल बाबर 3 को ज़ेर आबदोज से कामयाबी के साथ दागा। ये मिसाइल गुज़श्ता साल कामयाबी से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल बाबर 2 की जदीद शक्ल है। इसे खुसूसी तौर पर बहरिया के लिए तैयार किया गया है। 450 किलोमीटर फासले तक मार करने वाला ये मिसाइल कई किस्म के वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल निजाम जदीद तरीन नेविगेशन की बदौलत बहरी और अर्जी जोग्राफिया की जांच करते हुए रेडार और एयर डिफेंस निजाम से बचकर हदफ को निशाना बनाने की बेहतरीन सलाहियत का हामिल है। फौजी तर्जुमान का कहना है कि खित्ते में हमसाया मुल्क के अज़ाइम और जौहरी हिकमत अमली के तनाजुर में पाकिस्तान की दूसरी स्ट्राइक की सलाहियत मजीद मुअस्सर हुई है। ये पेशरफ्त कम से कम काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत के उसूल की पॉलिसी का आईनादार है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन और नेवल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराहान ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, दीगर फौजी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। फैसल रजा खान, आज न्यूज, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में कलअदम तंजीम के एक और फरारी कमांडर ने कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में होने वाली तकरीब का अहवाल बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद खालिद। बलूचिस्तान में कलअदम तंजीम के बैरून मुल्क बैठे कमांडर ने कौमी तराने की गूंज में सब्ज हिलाली परचम का लिबास पहनकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को तर्क करने का ऐलान किया और मुल्क को कौम की खिदमत का अज़म किया। मैं अपनी कम उम्री और नादानी की वजह से मुल्क दुश्मन के बहकावे में आ गया और इनके साथ शामिल हो गया। इस गलती का एहसास होते ही मैंने फैसला किया कि मैं अब मज़ीद मुल्क दुश्मन के हाथों में नहीं खेलूँगा। मैं अपने बलोच बच्चों और नौजवानों से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि वो तालीम हासिल करें और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी, हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान अनवारुल हक काकड़ और FC के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर खालिद बेग भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से अपने इस भाई को खुशामदीद कहता हूँ कि इसने खुद ये रियलाइज़ किया कि जो एक सो कॉल्ड एजेंडा मुसलत किया जा रहा था उन बलोचों पे जो पहाड़ों पे मौजूद हैं, उन बलोचों पे जो उनके पैरोकार थे जो खुद तो यूरोप में बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। हमने आपको बताया कि इस वक्त इन्होंने अकेले सरेंडर किया है, लेकिन सोशल मीडिया का जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म होता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो ज़ाहिर हैं तमाम इनके साथी रहे हैं, एक साथ उन्होंने काम किया है और आज इनका पलट के आना उनके लिए भी एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। कलअदम तंजीम के कमांडर की कौमी दायरे में शमूलियत के बाद हुक्काम मजीद लोगों के कौमी दायरे में शमूलियत की तवक्को इस अज़म के साथ कर रहे हैं कि जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा अब बलूचिस्तान की तरक्की की अलामत बन चुका है। मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा।